Good afternoon, everyone. So we were doing investment planning in the last class. हमने mutual funds पढ़ना start किया था last class में. So we'll continue with that first. We did about what mutual funds are, what is an SIP, what is a SWP. So आज हम करेंगे what are the types of mutual funds. टाइप्स में ब्रॉडली होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड फंड्स एंड एक होता है क्लोज एंडेड फंड्स. ओपन एंडेड का मतलब होता है इन्वेस्टर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है दैट ही और शी कैन इन्वेस्ट और एंटर एंड रिडीम और एग्जिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का. वो जब चाहें एंटर कर सकते हैं एंड जब चाहें लीव कर सकते हैं फंड की जो स्कीम जो उन्होंने स्टार्ट की थी. ओके. एक होता है लेकिन क्लोज एंडेड फंड्स. क्लोज एंडेड फंड्स की एक फिक्स्ड पीरियड होता है. तो उस केस में व्हाट दे से इज कि स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट मैच्योरिटी डेट जो है फिक्स्ड होती है. तो उसमें एन इन्वेस्टर कैन ओनली इन्वेस्ट और एंटर in these type of schemes during the initial period known as the new fund offer or the NFO period. कि मतलब कि जो म्यूचुअल फंड जो है they keep coming up with their new schemes. So what they do is sometimes वो schemes का fixed period रखते हैं. तो obviously उसकी starting की एक date होती है या एक initial period होता है 1 week or whatever the time period they have decided. वो initial period को कहते हैं न्यू फंड ऑफर. यानी कि इस पीरियड के बीच में कोई भी इन्वेस्टर आके स्कीम में अपना एनरोल कर सकते हैं. एंड देन इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होती है जिस मैच्योरिटी डेट पे जो म्यूचुअल फंड का सारा पैसा है इट गेट्स ऑटोमेटिकली रिडीम्ड इनटू द अकाउंट ऑफ द यूनिट होल्डर और द इन्वेस्टर. ठीक है. तो ये तो हो गया ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स. अब एक होते हैं टाइप्स. आपको ब्रॉडली किस किस बेसिस पे मिलते हैं. एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, ऐसे होते हैं. Okay, so what is equity mutual funds? Equity mutual funds are also called growth funds. So they allow investors to basically participate in the stock market. अब आप सोचोगे स्टॉक मार्केट में तो हम डायरेक्टली जाके शेयर्स भी परचेज एंड सेल कर सकते हैं. सो व्हाट इज इट अबाउट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? Though categorized as high risk, these schemes have a high return potential in the long run. They are ideal for investors in their prime earning stage, looking to build a portfolio that gives them superior returns over the long term. What happens is they are very ideal for investors in the prime earning stage. यानी कि जहाँ पे investors जो हैं अपना portfolio build करना start कर रहे हैं. They are willing to take higher risk because they want higher returns. So in order to get those superior returns in the long run, they invest in the equity mutual funds. Normally, an equity fund or a diversified equity fund, as it is commonly called, invests over a range of sectors to distribute that risk. अब देखो यहाँ पे आता है key difference that why some people do not buy equity shares but an equity mutual fund. क्योंकि equity shares तो आप एक कंपनी का अलग से लोगे या अब कुछ कंपनीज के कुछ कुछ शेयर्स भी ले सकते हो. A mutual fund manager, what they will do is they will distribute your money across various sectors. Why they will do that? Because they are diversifying your risk. They are trying to minimize your risk. They are trying to give you a higher return. Obviously it is a risky instrument, but in case of a equity mutual fund या फिर growth fund, वो return potential it increases substantially rather than the buying normally shares from the market. Okay. अब equity mutual funds में भी कुछ categories होती हैं. एक होता है sector specific funds. These are mutual funds that invest in a specific sector. यानी कि खाली बैंकिंग सेक्टर में करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करेंगे या फिर फार्मास्यूटिकल्स में करेंगे, एनर्जी में करेंगे और स्पेसिफिक सेगमेंट्स लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप सेगमेंट्स. यानी कि मिड कैप यानी कि जिनकी कैपिटल कंपनी से कैपिटल के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है. स्मॉल कंपनी स्मॉल कैपिटलाइजेशन. लार्ज कैप शेयर्स होता है जिनकी लार्ज कैप अमाउंट ऑफ कैपिटल है. फॉर एग्जाम्पल जो रिलायंस है या नेस्ले है, दीज आर लार्ज कैप कंपनीज. ओके. सो इस बेसिस पे कैटेगराइजेशन हो जाती है. या फिर स्मॉल कैप एंड मिड कैप होती है. दीज आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हैविंग अ हाई रिस्क एपेटाइट एंड हैव द पोटेंशियल टू गिव हायर रिटर्न्स. बिकॉज यहाँ पे रिस्की जितना ज़्यादा है उतनी ही रिटर्न ज़्यादा है. बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट योर सेक्टर स्पेसिफिक. आप एक ही सेक्टर में या एक ही टाइप ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए आपका जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है. रिटर्न ज़्यादा हो सकता है लेकिन अगर लॉस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंकिंग सेक्टर में ही कोई गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी या आरबीआई ने रेट्स चेंज कर दिए जिसकी वजह से सारे बैंक्स के स्टॉक्स डाउन हो गए,
So altogether जो म्यूचुअल फंड का आपका पैसा है, its value will decrease. But if there is a favorable news in the market related to the banking sector, तो सारे banking stocks आपके ऊपर जाएंगे, then the whole value of your mutual fund will increase. So that is why it is suitable for investors who have a high risk appetite. Okay. Then the next is index funds. They are ideal for investors who want to invest in equity mutual funds, but at the same time don't want to depend on the fund manager. क्या बोल रहे हैं? यूजुअली आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर आपका सारा एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय अ म्यूचुअल फंड मैनेजर. बट इफ एन इन्वेस्टर थिंक दे डोंट वांट हिज जजमेंट इन्वॉल्व, जो फंड मैनेजर का जजमेंट है, तो वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं. इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है? एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड फॉलोज द सेम स्ट्रैटेजी एज द इंडेक्स इट इज बेस्ड ऑन. क्या होता है? दे प्रॉमिस रिटर्न्स इन लाइन विद द इंडेक्स दे मिरर. यानी कि कोई भी इंडेक्स है मार्केट का, जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक इंडेक्स है, सेक्टर स्पेसिफिक कोई इंडेक्स है, देर आर S&P 500 है, S&P 300 है, BSE के कोई इंडेक्स हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, आपके मान लो सेंसेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है. सो व्हाट दे विल डू इज, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज हैं. आपने कहा कि मुझे सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड चाहिए, तो उसके अंदर जो 30 कंपनीज हैं, योर म्यूचुअल फंड will have only those 30 companies in your investments. निफ्टी में करना है तो वो 50 कंपनीज होंगे. बैंक निफ्टी में जितने बैंक्स हैं वो बैंक्स होंगे. सो योर रिटर्न्स विल बी इन लाइन विद द इंडेक्स. दे आर मिररिंग हो रही है एक तरह से, वो एग्जैक्टली उसके जैसा बना रहे हैं आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है. फर्दर दे ऑल्सो लिमिट द लॉस टू द प्रोपोर्शनल लॉस ऑफ द इंडेक्स दे फॉलो, मेकिंग them suitable for investors with a medium risk appetite. अब देखो किसी भी इंडेक्स में ना एक वेटेड वेट्स होते हैं हर स्टॉक के, ठीक है, कि उनकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की उससे कम होती है. तो इसीलिए जो प्रपोर्शन बना रहता है ना, उस प्रपोर्शन में ही इंडेक्स फंड में भी उन कंपनीज का मेंटेन करना होता है, ताकि जो आपका अगर लॉस भी हो तो उसी प्रपोर्शन में उससे ज्यादा ना हो. इन कंपैरिजन टू द सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, इन वाले इंडेक्स फंड्स का जो रिस्क है वो रिलेटिवली कम होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज अ टैक्स सेविंग फंड. टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू क्लेम डिफरेंट डिडक्शंस फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट. तो दे इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. ये ELSS स्कीम्स सेक्शन 80C होता है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंडर उसका डिडक्शन मिल जाता है कि आप अगर ELSS के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतने ही पैसे आपके इनकम टैक्स जो आपका बनेगा एंड ऑफ द ईयर उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज अ टैक्स सेविंग बेनिफिट. These type of schemes have a 3-year lock-in period. 3 साल से पहले रिडीम नहीं हो सकती. The investments are eligible for tax deduction under section 80C. ओके, तो ये होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. उसके अलावा देर इज मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स. मनी मार्केट फंड्स वो होंगे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. सो दे आर लुकिंग टू गिव अ रीजनेबल रिटर्न टू इन्वेस्टर्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज मनी मार्केट में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. यू कैन इजिली कन्वर्ट योर मनी इन्वेस्टमेंट इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड. They are suitable for investors with a low risk appetite who are looking at parking their surplus funds over a short period. What we are doing is, यहाँ पे इन्वेस्टर्स वो ही जाते हैं यूजुअली जिन्हें शॉर्ट टर्म में अपना पैसा वापस चाहिए, उसके ऊपर एक डिसेंट रिटर्न मिल जाए और ज़्यादा रिस्क भी नहीं उठाना पड़े. बिकॉज मनी मार्केट इज अ रिलेटिवली लो रिस्क मार्केट. दे आर एन ऑल्टरनेटिव टू पुटिंग मनी इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट. सेविंग्स बैंक अकाउंट में ये तो आपको थोड़ी सी रिटर्न मिलती है, आप जब चाहो अपना बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो. सो दैट इज अ सिमिलर ऑल्टरनेटिव टू दैट. The third one is डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स. डेट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से म्यूचुअल फंड में इंक्रीज एंड डिक्रीज तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, फिक्स्ड इनकम आएगी एक इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है. सो दे इन्वेस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ द मनी इन डेट, दैट इज फिक्स्ड इनकम, fixed coupon bearing instruments like government securities, bonds, debentures. They have a low risk, low return outlook and ideal for investors with a low risk appetite looking at generating a steady income. However, they are subject to credit risk. तो क्या होता है, किसी भी बॉन्ड में गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है. गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी है तो उसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, देयर इज़ वेरी लो रिस्क, ओके, एंड यू कीप गेटिंग इनकम. लेकिन क्रेडिट रिस्क क्या होता है?
द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कि जिस भी कंपनीज का और गवर्नमेंट्स का म्यूचुअल फंड ने बॉन्ड्स खरीदे होंगे या डिबेंचर्स खरीदे होंगे, इफ द कंपनी डज नॉट रीपे दैट डिबेंचर अमाउंट, रिडेम्पशन के टाइम में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, सो दैट इज द स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट रिस्क। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंगे तो वहाँ पे वो वाला रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। दैट इज वाई इट इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स विद अ low risk appetite. Then the next is something called balanced funds. Balanced fund के केस में क्या करते हैं? There are mutual fund schemes that divide investments between equity and debt. मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टर का पैसा डेट्स में डालते हैं, थोड़ा सा पैसा इक्विटी शेयर्स में डालते हैं. The allocation may keep changing based on the market risk. They are more suitable for investors who are looking at a combination of moderate returns with comparatively low risk. मतलब कि रिटर्न चाहिए बट बहुत कम भी नहीं चाहिए, एंड रिस्क ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए जो फंड मैनेजर्स हैं बैलेंस फंड क्रिएट करते हैं. देन द नेक्स्ट इज अ हाइब्रिड इनकम प्लान और अ मंथली इनकम प्लान. इनका ऑब्जेक्टिव होता है एक रेगुलर इनकम मिलती रहे उन्हें अपने म्यूचुअल फंड से. दे आर सिमिलर टू द बैलेंस्ड फंड्स बट द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इज लेस कंपेयर टू द टोटल बैलेंस्ड फंड. बैलेंस्ड फंड में इक्विटी भी डलता है, डेट भी डलता है. जो हाइब्रिड है उसमें वो कह रहे हैं मंजे इनकम प्लान्स हैं, इनकम प्लान्स में इक्विटी कम डालते हैं बिकॉज यहाँ पे रिस्क जो है वो कम चाहिए. That is especially suitable for investors who are retired and want a regular income with comparatively low risk. A retired person will not take the same amount of risk as a person who is in his 30s. एक रिटायरमेंट के बाद एक पर्सन को रेगुलर इनकम चाहिए उनके म्यूचुअल फंड से, इसीलिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इस केस में कम होती है. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल इक्विटी फंड्स. The last one is the gilt funds. Gilt funds invest only in the government securities, यानी कि गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स हैं या बॉन्ड्स हैं सिर्फ इनके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं. और दे आर प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क अवर्स. रिस्क अवर्स का क्या मतलब है? दे आर उनका रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है, वो रिस्क बेयर नहीं करना चाहते हैं एंड वांट नो क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद देयर इन्वेस्टमेंट. उनको कोई रिस्क नहीं चाहिए, उनको क्रेडिट रिस्क नहीं चाहिए. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केस में क्रेडिट रिस्क इज वेरी लेस बिकॉज एवरीबडी हैज कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट दैट दे विल नॉट डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ दैट मनी. ओके, सो दैट इज वाई द क्रेडिट रिस्क इज वेरी लो. सो अब हमने कौन से म्यूचुअल फंड्स देख लिए? हमने देख लिया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकता है, टैक्स सेवर हो सकता है. फिर उसके अलावा एक मनी मार्केट हो सकता है, एक डेट हो सकता है, एक बैलेंस हो सकता है दोनों का, एक मंथली इनकम स्पेसिफिक होगा और एक गिल्ट फंड यानी कि ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन इट. ठीक है, तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. अब एक म्यूचुअल फंड्स में एक टर्म होती है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी जो बोलते हैं. एनएवी का मतलब होता है द ओनरशिप इंटरेस्ट पर यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड. ओनरशिप इंटरेस्ट से क्या है? उसमें नेट एसेट्स आते हैं स्कीम के. नेट एसेट्स में यानी कि आपका इन्वेस्टर का पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर ने जहां जहां डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है. सो नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस अदर एसेट्स प्लस एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम कौन सी होगी? डिविडेंड मिलेगा अगर स्टॉक है तो, इंटरेस्ट मिलेगा अगर बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं, माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कौन से होंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकती है, ब्रोकरेज हो सकती है, कमीशन हो सकते हैं, माइनस अदर लाइबिलिटीज. यानी अगर म्यूचुअल फंड ने आपका मनी यूज करके वो एक क्रेडिट भी लिया है तो, ठीक है, तो टोटल नेट एसेट वैल्यू हो जाती है नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो हमने कल डिस्कस किया था, एक यूनिट होल्डर बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स में. शेयर होल्डर नहीं होते हैं, यूनिट होल्डर होते हैं. म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती हैं, उस एक यूनिट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं. ठीक है, सो ये टोटल मिलता है इससे नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट म्यूचुअल फंड. इट डिनोट्स द ओनरशिप इंटरेस्ट, यानी कि इन्वेस्टर का कितना ओनरशिप है उस म्यूचुअल फंड में. ओके, अब एक्सपेंसेस की बात हो रही है. सो व्हाट आर द एक्सपेंसेस? देयर आर समथिंग कॉल्ड इनिशियल इशू एक्सपेंसेस. दे आर एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड व्हेन द स्कीम इज लॉन्च. यानी कि जब म्यूचुअल फंड स्कीम फंड मैनेजर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक ब्रोकरेज फीस होती, कमीशन होगा, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होंगे, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे. ओके, यूजुअली द एएमसी बियर्स ऑल दीज एक्सपेंसेस. जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रही है तो ये सारे पैसे वो खुद ही बेयर करते हैं. इनिशियल एक्सपेंसेस अप टू 6% of the amount mobilized can be charged
to the scheme. अगर म्यूचुअल फंड का इफ दे वांट वो 6% ऑफ दोज एक्सपेंसेस स्कीम में उसका कॉस्ट कवर कर सकते हैं इफ दे वांटेड. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या आ जाता है? इनिशियल एक्सपेंसेस आ जाते हैं ये वाले. एक होता है देन लोड, एक एंट्री लोड होता है, एग्जिट लोड होता है. विल डिस्कस देम नाउ. एक होता है एनुअल एक्सपेंसेस. सो लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन. लोड क्या होता है? एक आपकी फीस होती है. इन केस ऑफ लोड फंड, some percentage of NAV is charged as an entry fees or exit fees on the buyer or seller of the unit of the fund respectively. जब भी मतलब कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है तो उसके ऊपर एक चार्ज लगेगा. ठीक है. वो चार्ज जो है NAV जो टोटल नेट एसेट वैल्यू है आपने म्यूचुअल फंड जितना खरीदा है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उसी में से उसको एडजस्ट कर देते हैं. तो ये लोड अब उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन है. वो एंट्री पे करना चाहते हैं यानी कि जब आपने बाय किया था, एंट्री लोड को कहते हैं फ्रंट एंड लोड या सेल्स लोड. एग्जिट पे करना चाहते हैं यानी कि जब आपने म्यूचुअल फंड आपका या तो रिडीम हो गया या फिर आपने पहले ही सेल कर दी अपनी यूनिट्स. एक होता है डेफर्ड लोड, वो ओवर द पीरियड थोड़ा थोड़ा करके चार्ज होता है. ठीक है. तो अब इससे देखो फर्क कैसे पड़ता है. मान लो अब एक नो लोड फंड है यानी कि यहाँ पे कोई लोड है ही नहीं. म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर से कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं चार्ज कर रहा. So the investment done by the investor is rupees 5,000. ठीक है. Somebody invested 5,000 rupees. Now he has got 250 shares. Then it means the value per share is rupees 20. Share का मतलब यहाँ पे यूनिट मान लो. ठीक है. 20 rupees है उसकी वैल्यू per unit. Now after 1 year the value of the share rises to rupees 22. प्रॉफिट हो रहा है. This means that the total value of the investment becomes rupees 5,500. मतलब कि 22 रुपीज, पहले 20 रुपीज थी वैल्यू, 250 शेयर्स थे, 5,000 थे, अब 22 बढ़ गई है तो 22 इंटू 250 5,500 हो गया यानी कि 500 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो गया. इफ ही रिडीम द इन्वेस्टमेंट देन ही विल गेट अ रिटर्न ऑफ 10%. 10% कैसे हो जाएगा? 500 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 500 डिवाइडेड बाय 5,000. सो यानी कि उनको 10% की प्रॉफिट मिल रही है. यहाँ पे उसका कोई चार्ज नहीं लगा. कहीं पे कोई देयर वाज नो एंट्री लोड, देयर वाज नो एग्जिट लोड. ओके. अब लेट्स सी, लुक एट द डिफरेंस. अगर कोई लोड होता, मान लो 4% वो कह रहे हैं, लेट्स अज्यूम देयर वाज अ 4% लोड. इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है 5,000 रुपीज, लेकिन इस बार 4% लोड है. 4% कितना होगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का? यानी कि वो होगा 200 रुपये. 4% 5,000 के गोज टू द ब्रोकर. यानी कि आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट हुई वो 5,000 नहीं हुई, वो 4,800 हुई. क्योंकि आपने उसको जो 5,000 रुपीज दिए अपने फंड मैनेजर को, उसमें से 200 तो उन्होंने अपने पास रख लिया एज योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एज योर एंट्री लोड. ठीक है. यानी कि उन्होंने, और फिर उन्होंने म्यूचुअल फंड में आपके 4,800 रुपीज डाल दिए. अब 4,800 रुपीज अगर आपके इन्वेस्ट हुए हैं और 20 रुपीज थी एक उसकी वैल्यू, तो आपको शेयर्स कितने मिले? 240. ही हैज गॉट 240 शेयर्स. जबकि इस केस में आपको मिले थे, ही हैज गॉट 250 शेयर्स. क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री लोड नहीं था, यहाँ पे लोड था. तो अमाउंट कम इन्वेस्ट हुआ आपका, तो 250 की जगह आपको 240 शेयर्स मिले. नाउ आफ्टर 1 year द वैल्यू शेयर ऑफ द शेयर राइजेस टू 22. दोनों केसेस में यहाँ पे भी 22 रुपये हो गया था, 20 से 22 रुपये. यहाँ पे भी 20 से 22 रुपये हो गया. Then it means that the total value of the investment rises to 5,280. कैसे वो 5,280? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके पास 240, वो 22 रुपए के हुए हैं अब. तो मतलब कितना हुआ? 5,280. यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू 22 इंक्रीज हुए थे, लेकिन उनके पास शेयर्स 250 थे, तो इसीलिए उनकी इनकम बढ़ गई थी 5,500. आप देखो ना, प्रॉफिट कम हो गया ढाई, वो 10 शेयर्स कम मिलने की वजह से. अब अगर वो अपना म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर दें, रिडीम कर दें, सेल ऑफ कर देंगे, तो उनकी रिटर्न कितनी हो जाएगी? 5,280 माइनस 5,000 यानी कि 280 रुपीज. यहाँ पे उनकी रिटर्न थी 500 रुपीज, यहाँ पे 500 रुपीज थी रिटर्न, तो 10% था. यहाँ पे 5.6% रह गया. क्यों रह गया 5.6%? क्योंकि अपना एंट्री लोड लग गया. आपने जितने शेयर्स, बिना अगर कोई लोड नहीं लगा होता तो उससे कम मिले आपको शेयर्स, बिकॉज ऑफ दैट 4% एक्सपेंस. ठीक है. तो यहाँ पे लोड म्यूचुअल फंड्स की वजह से आपकी रिटर्न कम हुई. ओके. अब एंट्री लोड क्या हमने बताया? दे आर इम्पोज व्हेन द यूनिट्स आर परचेज्ड, जो हमने इस केस में देखा एट द टाइम ऑफ परचेज लगाई. Purchased or at the time of entry in the fund. Suppose the entry load is 2% and the investor buys unit of mutual fund having NAV of rupees 12. Then the investor will have to pay 12 rupees plus 2% of 12 rupees, जो हो जाएगा 0.24. ठीक है. एक यूनिट की वैल्यू 12 रुपए थी, लेकिन अब उस पर एंट्री लोड भी लग रहा है,
तो उन्हें 12 रुपये 24 पैसे देने पड़े। ये होता है फ्रंट लोड या फिर एंट्री लोड। अब एग्जिट लोड होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग योर म्यूचुअल फंड्स, यानी कि मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं लगा आपका, जैसे हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया। अब एंड में जब आपकी रिडेम्पशन की बात आ गई या आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे हैं, इट इज इम्पोज्ड व्हेन द यूनिट्स आर सोल्ड बैक टू द म्यूचुअल फंड द लोड चार्ज एट द टाइम ऑफ एग्जिट। This load is imposed to deter the investors from withdrawing from the scheme. यानी कि एग्जिट लोड लगाते हैं इन्वेस्टर्स को रोकने से कि आप म्यूचुअल फंड अपने ना बेचें, टू स्टॉप द इन्वेस्टर्स फ्रॉम विड्रॉइंग फ्रॉम द स्कीम। वो एग्जिट जो अगर फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है तब तो हो ही जाएगा एग्जिट एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, या तो उस फिक्स पीरियड से पहले ना करें या फिर वो दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। इसीलिए वो एक तरह से चार्ज लगा देते हैं, ये कॉस्ट लगा देते हैं टू प्रिवेंट द इन्वेस्टर फ्रॉम selling the mutual fund units. Here repurchase price of the units is less than the NAV. repurchase price कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि आपकी जो redemption value है वो गिर जाएगी, और NAV जो है आपका वो तो आपका total value of your assets and investments है म्यूचुअल फंड का। As per SEBI regulations, entry load and exit load cannot exceed 7% of NAV in case of an open-ended scheme. Open-ended scheme हमने कौन सी पढ़ी? जिसमें इन्वेस्टर जब चाहे एंटर कर सकते हैं, जब चाहे सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। So the SEBI regulations say that any company, any mutual fund cannot charge that this load more than 7% of the total NAV. जितना NAV, जितने यूनिट्स इन्वेस्टर ने परचेज किए हैं उससे 7% ज़्यादा कोई उनसे चार्ज नहीं कर सकता। अब एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं इनके अलावा। एनुअल एक्सपेंसेस रेफर टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस चार्ज बाय द AMC। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दे आर गिविंग यू योर स्किल रिसर्च एंड योर देयर एडवाइजरी सर्विसेज, दे आर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो, तो उसके लिए दे आर चार्जिंग एन एनुअल फीस फ्रॉम यू, plus the operating expenses like marketing and selling expenses, brokerage cost, trustee fees, custodian fees, etc. तो ये ढेर सारे expenses हो गए। तो इस there is an expense ratio that total annual expenses, annual operating expenses divided by the average assets under management, इसे AUM बोला जाता है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड के देखते हैं ना कि how much when investor decides that how much they should invest, तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं वो बताती हैं उन्हें that this is our AUM, this is the amount of assets, this is the amount of investments we are managing right now, so this is the amount of investment people have done in our mutual fund. तो average assets under management वो होता है। तो annual expenses or average assets management divided gives the expense ratio. An expense ratio of 1% means that shareholders incur annual expenses amounting to 1% of the value of the fund. The higher the expense ratio, the lower the return for the portfolio performance. क्योंकि क्या होगा, जितना परसेंट आपका लगा रहे हो आप, 1% of expense ratio means shareholders incur annual expenses amounted to 1% of the total value of the fund. किसने अगर 100 रुपए अगर म्यूचुअल फंड में डाले हैं या चलो 1000 रुपए डाले हैं, 1% उसका 10 रुपीज हो गया। 10 रुपीज तो वैसे एक्सपेंसेस में चले गए। मतलब द हायर द एक्सपेंस रेशियो द लोअर विल बी द रिटर्न, क्योंकि आप जितना कॉस्ट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो उतनी कम होगी, राइट? बिकॉज यू विल बी पेइंग लेसर, यू विल बी यूजिंग लेसर अमाउंट टू एक्चुअली इन्वेस्ट, क्योंकि बाकी सब तो जो फंड मैनेजर्स हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में ये एक्सपेंसेस के फॉर्म में कट कर लेंगे पहले ही, राइट? सो दैट इज अ drawback. Okay, so this ends your unit 2. This ends your last topic of mutual fund. I'll first take your doubts from mutual funds till here. Are there any doubts? Okay, I don't see any doubts, so should I move? I'll move on then.
Alright, since there are no doubts, I'll proceed. अगर म्यूचुअल फंड में कोई डाउट है, I can just revise it once with you, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. हमने म्यूचुअल फंड में we have done the meaning of it, we've done the features, the advantages of it. अब हमने सिर्फ टाइप्स किया और उनके एक्सपेंस रिलेटेड एस्पेक्ट डिस्कस किया. तो टाइप्स क्या है? एक ओपन एंडेड हो सकता है, एक क्लोज एंडेड हो सकता है. ओपन एंडेड यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एंटर एंड एग्जिट. क्लोज एंडेड देयर इज अ फिक्स्ड पीरियड व्हेन यू कैन एंटर और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो रिडीम हो जाता है. ओके, दैट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. अब उसके अलावा you can have equity mutual funds, you can have debt mutual funds, you can have money market funds, you can have a balanced fund, government securities में funds. इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिस्की होता है लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न भी उनसे मिलती है. उसके अंदर यूजुअली 3 कैटेगरीज होती हैं. सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही टारगेट कर रहे हैं. इंडेक्स हो सकता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट कर रहे हैं. टैक्स सेविंग करते हैं. द टारगेट इज टू सेव द टैक्सेस इन द एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न. फिर होता है मनी मार्केट फंड्स. मनी मार्केट फंड्स यू विल इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट होती है, सो रिटर्न भी इज रिलेटिवली लो. इट इज ऑल्सो रिलेटिवली सेफ फॉर द इन्वेस्टर्स बिकॉज देर इज अ वेरी लो रिस्क. देन एक होता है फिक्स्ड इनकम फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स. यहाँ से एक फिक्स्ड इनकम इसलिए बोलता है बिकॉज यहाँ से एक मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ साथ एक इंटरेस्ट मिलता है. तो यहाँ पे भी जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क जो है कम है, एंड द रिटर्न इज रिलेटेड टू दैट. And the next is balanced funds, where there is a combination of debt and equity mutual funds. The people are investing in both debt as well as equity. It is, there is moderate risk and there is a decent return. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या मंथली इनकम प्लान्स होते हैं जहाँ पे यूजुअली प्रेफर्ड बाय द रिटायर्ड इंडिविजुअल्स. दे वांट टू generate monthly income from their mutual fund investment. So इस केस में रिस्की कम रखा जाता है आपके इन्वेस्टमेंट को. तो इक्विटी में कम इन्वेस्टमेंट होता है. इट इज नॉट नेगेटेड, इट इज नॉट एलिमिनेटेड, बट इट इज मार्जिनली लो. इसीलिए हम इनको कहते हैं marginal equity funds. And the last one is a gilt fund, yani ke the mutual fund will only invest your money in government securities. So it is preferred by people who do not want any risk in their investments. They are very risk averse, and there is no credit risk. आप इन्वेस्ट करोगे, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद, आपको उस पर थोड़ा रिटर्न मिलता रहेगा. Okay, it is as simple as that. Then we did NAV, net asset value. Net asset value is the ownership interest per unit of the mutual fund. तो net assets में आ जाते हैं आपकी मार्केट वैल्यू जो आपकी इन्वेस्टमेंट की है, एसेट्स, बाकी फाइनेंशियल एसेट्स जो म्यूचुअल फंड ने आपके लिए लिए हुए हैं, उससे जो इनकम जनरेट होगी, उससे जो एक्सपेंसेस आएंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो वो माइनस हो जाती है. नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग गिव्स द नेट एसेट वैल्यू. तब उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रोकरेज हो सकती है, कमीशन हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये सारे जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, द AMC यूजुअली बेयर्स देम, और इफ दे वांट टू चार्ज इट फ्रॉम द कस्टमर वो अप टू 6% कर सकता है. Total cost of investment in a mutual fund includes these initial expenses, the entry load, the exit load, and the annual expenses. अब entry load और exit load या deferred load कितना परसेंट चार्ज करना है या चार्ज करना है या नहीं is the sole discretion of the mutual fund manager. Usually जब लोड नहीं होता है, हमने जैसे एग्जांपल में देखा, the return of the investor is higher, but obviously the mutual fund manager also needs to earn money. तो वो usually charge करेंगे, कब charge करेंगे, कितना charge करेंगे is will vary from each mutual fund. Okay, तो इसीलिए हम entry load पढ़ते हैं, हम exit load पढ़ते हैं. Entry load is imposed at the time of purchase or entry into the fund. Exit load is imposed at the time of selling off or at the time of maturity or redemption of the mutual fund. So as per SEBI regulations, entry load and exit load cannot exceed 7% of the NAV in case of open-ended scheme. Okay, and then annual recurring expenses are there. Annual recurring expenses होते हैं जो आपका initial expenses और load के अलावा annually fees charge कर रहा है mutual fund for their advisory services, for their research services, for the marketing and selling expenses, and so on.
तो इसका एक एक्सपेंस रेशियो निकल जाता है। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा है उतनी ही रिटर्न कम हो जाएगी फ्रॉम अ गिवन लेवल ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, so that is not good for the investor. Okay. So can I move on with the next unit now? What is loan fund? Which type of mutual fund gives a good return? See, uh, that depends on the different aspect. आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिस्क एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अ पर्सन मेक्स। आप डिसाइड नहीं कर सकते ये कि दिस डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, और ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, इससे अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए हैं। इक्विटी में बोलते हैं रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बैलेंस फंड यूजुअली ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं कि वहाँ पे डेट भी होता है और इक्विटी भी होती है, तो रिस्क और रिटर्न मॉडरेट होते हैं। व्हेन आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है तो डेट भी बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड में टाइम पीरियड, आप कितने टाइम के लिए डाल रहे हो अपना मनी, सो योर रिटर्न विल डिपेंड ऑन दैट। टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, जो अमाउंट ऑफ लोड है, लोड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कितना लग रहा है, वो एंट्री पे लग रहा है, एग्जिट पे लग रहा है। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आस्क व्हाट इज लोन फंड, शिवानी। लोन फंड इज वन जहाँ पे आपका लोड चार्ज होगा, जिस म्यूचुअल फंड के केस में लोड चार्ज कर रहे हैं वो, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक इन्वेस्टर ने 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, 4% उस पर लोड है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एंट्री 4% उसमें से निकाल के फंड मैनेजर ने अपने पास इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस इम्पोज कर दिया। तो बाकी आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 4800 रुपीज़ लगा, क्योंकि 200 रुपये उसने एक्सपेंसिस के फॉर्म में काट लिए। तो 4800 रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। लोड फंड वो होते हैं जहाँ पे कोई भी एंट्री लोड या एग्जिट लोड इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। सो दोज आर लोड फंड्स। एनी डाउट, एनी अदर डाउट? टाइम पीरियड इज 30 years, सो यू डिसाइड। आप अपने फंड मैने आप बात करो जिस म्यूचुअल फंड में आपको इंटरेस्टेड हो, यू टॉक टू देम दैट दिस इज माई इन्वेस्टमेंट होराइजन। व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड, उनका जो फंड मैनेजर होता है वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, एंड सो ऑन। तो देन वो आपको अच्छा आपका रिस्क कितना है, आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना चाहिए, कितना मिल सकता है या नहीं, देन वो आपको एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली। इसीलिए उनके एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह सब होती हैं उसके अंदर, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपके म्यूचुअल फंड में से वो चार्जेस के फॉर्म में कितना डिडक्शन करेंगे एंड सब करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दैट। ओके, okay, now we are starting with our next unit. This winds up your unit 2 from my side. The third unit is personal tax planning. Personal tax यानी कि एक इंडिविजुअल्स पे जो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो आज हम ब्रॉडली इनकम टैक्स की बात करेंगे जो इंडिया में लगता है। What is tax planning? Taxes can eat into your annual earnings. They are eating into your annual earnings because क्या हो रहा है, आपकी सैलरी, एक पर्सन की सैलरी में से कटता ही तो है वो। It is taking a chunk out of your total income. To counter this, tax planning is a legitimate way of reducing your tax liability in any financial year. तो tax planning का मतलब क्या है, आप देखो आप कहाँ कहाँ से अपना टैक्स बचा सकते हैं। आपको टैक्स चोरी नहीं करना है कि गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना, आपने मना कर दिया है, आपने दिया नहीं। आपको अपना इस तरह से मैनेज करना है कि वो शायद वो टैक्स थोड़ा कम हो सके। जो जैसे हमने टैक्स सेविंग फंड्स पढ़े, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको क्या होता है, आपको डिडक्शन मिल जाती है अपनी आईटीआर में मेंशन करके। तो आपको जो जितना टैक्स पे करना होता है उससे कम पे करना पड़ता है। दैट इज टैक्स प्लानिंग. Tax planning is the analysis of one's financial situation from a tax efficiency point of view, so as to plan one's finances in the most optimized manner. You are analyzing your financial situation कि आपके finances क्या हैं, आपकी income क्या है, आपके assets क्या हैं, आपकी liabilities क्या हैं, और आप from a tax efficiency point of view, और आप उन सबको किस तरह से plan कर सकते हो कि आपका जो tax payable है वो कम से कम रहे। To plan of the finances in the most optimized manner. Optimal situation तब होगी जब आपको टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम हो जाए, जितना टैक्स पे करना पड़ रहा है उससे कम देना पड़े, बट इन अ थ्रू अ लेजिटिमेट राउट, थ्रू अ लीगल राउट, not nothing, not from any illegal activity.
Tax planning allows a taxpayer to make the best use of various tax exemptions, deductions, and benefits to minimize their tax liability over a financial year. क्या करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट डिडक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट्स हैं, जहाँ पे आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करके या फॉर एग्जांपल जब कोई होम लोन लिया है किसी ने, अगर पहला घर लेता है वो, तो उस होम लोन के ईएमआईज के टैक्स डिडक्शन मिलती है। किसी को एजुकेशन लोन की ईएमआईज पे टैक्स डिडक्शन अलाउड है। सेक्शन 80C में ईएलएसएस फंड्स जो अभी हमने टैक्स सेवर फंड्स पढ़े उसकी डिडक्शन अलाउड है। ऐसे देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन द इनकम टैक्स लॉ which provides the taxpayer different options to use these benefits to minimize their tax liability over a financial year. Tax planning is a legal way of reducing the income tax liabilities. However, caution has to be maintained to ensure that the taxpayer is not knowingly indulging in tax evasion or tax avoidance. Tax, again, this is a very important thing to remember कि tax plan का मतलब ये नहीं है कि आप चोरी कर रहे हैं टैक्स या कोई illegal activity कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए. It is a legal way of reducing liabilities. गवर्नमेंट ने आपको डिडक्शंस और बेनिफिट्स दिए हैं आपका टैक्स बचाने के लिए, but caution has to be maintained to ensure that the taxpayer is not knowingly indulging in tax evasion. यानी कि जानबूझ के कोई टैक्सपेयर अपना टैक्स बचाने की कोशिश, टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, या टैक्स इवेजन यानी कि चोरी कर रहे हैं, टैक्स भर नहीं रहे हैं, इलीगल काम है वो. ठीक है, टैक्स प्लानिंग इज लीगल इफ इट इज डन एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द इनकम टैक्स लॉ. ये होता है टैक्स प्लानिंग. What are the objectives of tax planning? Tax planning is a focal point of financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग जब हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो हमने लगा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैक्स प्लानिंग. It ensures saving on taxes while simultaneously conforming to the legal obligations and requirements of the Income Tax Act. कि आपका इनकम टैक्स के रूल्स के अंदर जो गाइडलाइंस हैं आप उनको यूज करके उनकी रिक्वायरमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करके अपने टैक्सेस बचा रहे हो. The primary concept of tax planning is to save money and mitigate one's tax burden, right? However, this is not its sole objective. Sole objective खाली नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा बचाना है. आपको पैसा बचाना है लेकिन आपको लीगली पैसा बचाना है. आपको गवर्नमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो गाइडलाइंस हैं, वो डिडक्शंस क्लेम करने के लिए उन सबको फुलफिल करना है. So it is not just it's not about just one thing. Advantages of tax planning. Advantages में एक आ जाता है to minimize litigation. Litigation कब होता है? To resolve tax disputes with a local, federal, state or foreign tax authorities. कोई problem आ जाए तो then there is often friction between tax collector and taxpayer as the former attempts to extract the maximum amount possible. Former कौन है यहाँ पे? Government. कि वो लोकल गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इंटरनेशनली भी कस्टम ड्यूटी है, देयर आर डिफरेंट टैक्सेस इन्वॉल्व. तो गवर्नमेंट के लिए तो टैक्स का है रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. हम टैक्स पेयर हैं, हमें क्या चाहिए? हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े. द लैटर डिजायर्स टू कीप द टैक्स लायबिलिटी टू अ मिनिमम. Minimizing litigation saves the taxpayer from legal liabilities. To minimize litigation, that is it. The second is to reduce tax liability. Every taxpayer wishes to reduce their tax burden and save money for the future. You can reduce the payable tax by arranging investments within the various benefits offered by the Income Tax Act. Income Tax Act में वो हम पढ़ेंगे कि deductions क्या होती हैं, कौन कौन से benefits होते हैं. So you can make your investments in such a way कि आप उन्हीं इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप म्यूचुअल फंड में ELSS में इन्वेस्ट करते हो तो जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ELSS में करते हो उतना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलता है, क्लेम कर सकते हो अपने टोटल पेबल टैक्स में से. तो उससे क्या हो रहा है? आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे गए हैं टू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन. That act offers many tax planning investment schemes that can significantly reduce your tax liability. To ensure economic stability, taxpayers' money is devoted to the betterment of the country. Government जो tax revenue collect करिए, what is the government going to do with it? It is going to use that money for different development schemes for the country. Country के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए उस money को use करेंगे वो. Effective tax planning and management provide a healthy inflow of white money that results in the sound progress of the
इकोनॉमी। इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग, क्यों गवर्नमेंट इतने सारे डिडक्शंस दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप अपना होम घर खरीदो, आप लोन लोगे उसका, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। बिकॉज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव इंसेंटिव्स फॉर पीपल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट जो प्रमोट करेगी, दैट मनी विल बी यूज्ड इन द इकोनॉमी एज अ होल। तो ये जो इनफ्लो ऑफ वाइट मनी क्या है, लेजिटिमेट मनी है ये, ब्लैक मनी नहीं है जिसके ऊपर कहीं से भी टैक्स चोरी नहीं हुआ है, टैक्सेस पे हो रहे हैं इसमें, सो दैट इज वाइट मनी। It results in the sound progress of the economy. This benefits both the citizens as well as the economy. The last point is to leverage productivity. One of the core tax planning objectives is channelizing funds from taxable sources to different income generating plans. क्या कर रहे हैं, जो जैसे हमने कहा, why the government what the government does with your taxes, it uses those funds in different activities. उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमी का फायदा तो ऐसे हो गया, इंडिविजुअल का फायदा, आपका खुद का टैक्स पेयर का फायदा कैसे होता है, यू आर यूजिंग दैट मनी टू इन्वेस्ट इन समथिंग। जैसे आप ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके दो बेनिफिट्स हो रहे हैं, यू आर यूजिंग दैट मनी टू सेव योर टैक्स, लेकिन आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही है ना, आपको पैसा कुछ टाइम के बाद वापस ही मिलेगा। तो एक तरह से वो इनकम जनरेशन हो रही है आपकी। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टैक्सेस भी सेव होते हैं और आपकी इनकम भी आ जाती है। दिस इंश्योर्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड फॉर प्रोडक्टिव कॉजेज। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई ना, आपके फंड्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, आपके फंड्स आइडली बैंक में नहीं बैठे हैं, या आपने पूरे फंड्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ही नहीं पे कर दिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलेगी, आपकी इनकम होगी, आपको प्रॉफिट होगा। तो it is how it is these tax planning methods, these tax benefits are giving productivity to the funds. अब types of tax planning होती है, tax planning short range हो सकती है। Under this method, tax planning is thought of and executed at the end of the fiscal year. End of fiscal year क्या होता है इंडिया के केस में 31st मार्च, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट डे की 31st मार्च तक। Investors resort to this plan in an attempt to search for ways to limit their tax liability legally when the financial year comes to an end. देखो legally करना बहुत ज़्यादा important है, ठीक है? This method does not partake long-term commitments. It can still promote substantial tax saving. यानी कि आपने मान लो 1st April 2021 नेक्स्ट 31st मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना टैक्सेस की रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब जो इन्वेस्टर है, जो टैक्स पेयर है, वो 31st मार्च 2022 के बाद सोचेगा कि अच्छा इतना मेरा टैक्स बनेगा, मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ टू सेव माई टैक्स। वो एक तरह से वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म स्कीम्स देखेंगे कि अभी कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है टैक्स सेव करने के लिए। टैक्स सेविंग्स फिर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी ना हो, कि ऐसा ना हो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, राइट? Long term tax planning. Long term tax planning is chalked out at the beginning of the financial year and the taxpayer follows the plan throughout. मतलब कि वो कोई ऐसा फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो अपनी ऐसी कोई मेडिकल बेनिफिट्स स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बेनिफिट्स उनको थ्रू आउट द ईयर मिलेंगे, एवरी मंथ एवरी क्वार्टर ऐसे करके। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट कर देंगे एंड विल स्टिक टू दैट प्लान थ्रू आउट दैट ईयर। अनलाइक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, you might not be offered with immediate tax benefits, but it can prove helpful in the long run. लॉन्ग रन में इसका एडवांटेज मिलेगा इन्वेस्टर को, टैक्स पेयर को। शॉर्ट रन में हो भी सकता है और नहीं भी, इमीडिएट बेनिफिट्स ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलेंगे। Permissive tax planning. Permissive tax planning involves planning under various provisions of the Indian taxation laws. Tax planning in India offers provisions such as deductions, exemptions, contributions, and incentives. For instance, Section 80C of the Income Tax Act offers several types of deductions on various tax saving instruments. Permissive मतलब कि इनकम टैक्स लॉ में लिखा है कि ये इस तरह से आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। तो एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है सेक्शन 80C का। इनकम टैक्स एक्ट में 80C सेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट देयर आर 10-20 कैटेगरीज जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके या कुछ भी क्लेम करके अपने टैक्स में डिडक्शन मिल सकते हो। वो म्यूचुअल फंड्स में, LIC में, UTI में इन्वेस्टमेंट से। Purposive tax planning. Purposive tax planning involves using tax saver instruments with a specific purpose in mind. It ensures you obtain optimal benefits from your investment.
It includes accurately selecting the appropriate investment, creating an apt agenda to replace assets if required, and diversification of business and income assets based on your residential status. The purpose of tax planning, यानी कि it's a very complicated, it is a very intelligent way of planning your taxes. कि आप starting से ही एक पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से स्टार्ट कर रहा है, अपने जो लोन्स की रीपेमेंट है, उनका जो बिजनेस का एसेट्स हैं, उनके इनकम्स जो हैं डिफरेंट एसेट्स में से, वो इंडिया में है या फॉरेन कंट्रीज में से भी है, तो उनको इस तरह से अरेंज करें कि मेरा टैक्स पेबल जो है कम से कम रहे. So the purpose in mind is what? To save the tax. That is why it is called the purpose of tax planning. Steps in planning taxes, there are certain steps. First of all, the investor, the taxpayer should understand their gross annual income. The first step includes understanding your total income from all the sources. कहाँ से आपकी, अगर जॉब करते हो तो सैलरी है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम है, अगर कोई रेंट, कोई आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है उससे रेंट आता है, रेंट इनकम है, या फिर कैपिटल गेन, आप जो कोई प्रॉपर्टी बेची है उससे कैपिटल गेन हुआ है, आप मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, उससे कैपिटल गेन होता है. तो टोटल मिला के फ्रॉम ऑल द सोर्सेज आपकी इनकम कितनी है. बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, किसी का बैंक लोन है तो reduce your taxable income. The second thing in mind is to know that you want to reduce your taxable income. कि मेरा इनकम के सोर्सेज ऐसे हों जिसके ऊपर गाइडलाइंस में गवर्नमेंट के थ्रू, कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि इस चीज पर टैक्स नहीं लगेगा या लगेगा तो बहुत कम लगेगा, तो दे शुड प्लान इट दैट वे. द थर्ड इज यूज टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स. यू इन्वेस्ट योर मनी इन, यू ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ से टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं. Take the help of family members to save tax. Then keep tax proofs handy for verification every year. आप जो भी पर्सन्स आपकी फैमिली में, आप खुद अगर जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड आपकी अगर सैलरी है तो उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बैंक का अगर इंटरेस्ट स्टेटमेंट है उसका भी फॉर्म होता है, तो कीप ऑल ऑफ दोज थिंग्स सेफली विद यू फॉर वेरिफिकेशन. एंड फाइनली फाइल योर टैक्सेस बिफोर द डेडलाइन. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डेडलाइन बोली हुई है इंडिविजुअल्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, उससे पहले पहले कर दो वरना फाइन लग जाता है. नाउ इन इंडिया द टैक्स रेट्स आर दीज. इंडिया में हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, मैं कंपनीज की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, ठीक है. टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिविजुअल्स. सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्स्ट कैटेगरी जो है इंडिविजुअल्स अदर दैन सीनियर्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन, यानी कि लेस दैन 60 ईयर्स ऑफ एज, तो उनकी अप टू ₹2,50,000 एनुअल इनकम की बात हो रही है. एनुअल इनकम अगर अप टू 2,50,000 है तो उन पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है. देयर इनकम इज एग्जेम्प्ट. ओके. 2.5 लाख के ऊपर एंड द पीपल हु हैव whose total income is up to ₹5 lakh, their 5% income tax is charged. So for example, किसी की इनकम मान लो 4 लाख रुपीज है, उस 4 लाख में से 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बचे हुए 1,50,000 जो हैं उस पे 5% टैक्स लगेगा. ठीक है. एंड देन इफ समबडीज इनकम इज मोर देन 5 लाख एंड लेस देन 10 लाख, उस पे 20% लगता है, एंड अबव 10 लाख पे 30% लगता है. अ पर्सन हु इज अ सीनियर सिटीजन, यानी कि जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो एक सीनियर सिटीजन बन गया, उनको एग्जेम्पशन मिली है अप टू 3 लाख. इंडिविजुअल को मिली है 2,50,000 लेस देन 60 ईयर्स को. अ पर्सन हु इज अ सीनियर सिटीजन, देयर इनकम इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹3 लाख, यानी कि उनकी एनुअल इनकम जो भी उनकी पेंशन आ रही है, उनकी कोई भी म्यूचुअल फंड से इनकम आ रही है, कोई रेंट इनकम है, टोटल इनकम is up to less than 3 lakh rupees and there is no rate, no income tax charged from that person. More than 3 lakh and up less than 5 lakh है तो उस पर 5% लगता है. अगेन 3 लाख से ऊपर वाला सिर्फ डिफरेंशियल पे लगता है ये जो रेट्स होते हैं, इसीलिए ये स्लैब्स बनाई है गवर्नमेंट ने कि अगर 4 लाख रुपीज मान लो किसी सीनियर सिटीजन की इनकम है, दैट डज नॉट मीन पूरे 4 लाख के ऊपर 5% लगेगा. 3 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, बचे हुए 1 लाख के ऊपर 5% लगेगा. अमाउंट की रेंज के अकॉर्डिंग लगता है टैक्स. अब 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है तो 20% लगेगा. सो इस केस में क्या होता है, मान लो एक पर्सन की, एक सीनियर सिटीजन की एनुअल इनकम इज 6 लाख रुपीज. उस 6 लाख में से क्या होगा, 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बचे 3 लाख, अप टू ₹5 लाख कितना है 5%.
तो अब बचे हुए 3 लाख में से 2 लाख पे लगेगा 5% और द लास्ट 1 लाख रुपीज जो सिर्फ 6 लाख कंप्लीट हो रहा है उस पर लगेगा 20%। इसीलिए स्लैब्स में अलग अलग लेयर्स में टैक्सेस लगता है। 3 लाख पे कुछ नहीं, उसके बचे हुए 5 लाख तक जो टोटल हो गया उस पर 5% लगेगा। उसके बाद 5 लाख से ऊपर जो हो गया अप टू ₹10 तो 20% लगेगा। 10 लाख से ज़्यादा जो है रिमेनिंग अमाउंट उस पर 30% लगेगा। In case of super senior citizens are people whose age is 80 or above. तो super senior citizens के केस में the exempt income is 5 लाख रुपीज, यानी कि अप टू रुपीज अगर उनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है तो 20% लगेगा। 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% लगेगा। These are the income tax slabs in India for individuals. Personal income tax के केस में these are the income tax rates. I hope it is clear now. So how to get started with tax planning? What should a taxpayer do? They should start by taking their total income into account. This is the starting point of the process and requires to accurately assess the annual and monthly income. Taxpayer को देखना है every month उनकी क्या income है तो और annual income कितनी बनती है। अपनी सारी income from all the sources, अगर किसी का salary कितना आ रहा है, बैंक से उनको interest कितना मिल रहा है, उनका म्यूचुअल फंड या जो भी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है वहाँ से कितना रिटर्न आया है, और एवरीथिंग हाउस होल्ड में है, हाउसिंग प्रॉपर्टी में रेंट आता है तो वो कितना है, इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, मंथली कितनी आ रही है, एनुअली कितनी आ रही है। इवैल्यूएट द टैक्सेबल एस्पेक्ट ऑफ द इनकम। अब इसमें देखो टैक्स कितने अमाउंट पे लगेगा, क्योंकि जैसे इंडिविजुअल है जो 60 ईयर्स से लेस का 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये देखो कितना टैक्सेबल एस्पेक्ट है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पे बोला हम टैक्स नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट रिसर्च फेलोशिप्स जो होती हैं या फिर एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट पे टैक्स नहीं लगता। हाउसिंग एंड रेंट अलाउंस इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑन टॉप ऑफ द बेस पे आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, however profits made from the investments could add to the taxable income. These are just examples कि देखिए इस तरह से कुछ चीज़ों पर टैक्स लगता है इनकम की, कुछ पे नहीं लगता। Therefore, understanding one's taxable income is a requisite to be able to plan the taxes. The third point is make use of the deductions to reduce total taxable income. This can be done by structuring the salary and properly planning the investments. For example, interest from a deposit, fixed deposit is taxed at the same rate as income tax, while a debt fund over years is taxed at 20%. तो अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो आपने एक एफडी की है, ठीक है, मान लो आप एक पर्सन की 10 लाख की एफडी है, 10 lakh के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इफ यू फॉल इन द 30% टैक्स ब्रैकेट अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम ऑफ 10 lakh एंड अबव, दैट फंड बिकम्स अ मोर टैक्स फ्रेंडली ऑप्शन। एक पर्सन की इनकम 12 लाख रुपीज है, वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आ गए। तो अगर उनकी मान लो कोई एफडी है बैंक में, बैंक उनसे 30% टैक्स चार्ज कर लेगा। वाइल व्हाट दे कैन डू इज, अगर उन्होंने सेम पैसा एफडी में डालने की बजाय एक डेट फंड में डाला होता और उस डेट फंड पे 20% टैक्स लगता है तो उस पर्सन का 10% टैक्स बच गया ना। तो इसीलिए मेक यूज ऑफ डिडक्शंस। देखना चाहिए था उस पर्सन को कि इनकम टैक्स लॉ में कितना परसेंट डिडक्शन किस चीज पे मिल रहा है। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग यू स्ट्रक्चर योर इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्ली, प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स इन सच अ वे दैट योर टैक्स लायबिलिटी गेट्स रिड्यूस्ड। तो इसके लिए पता होना चाहिए ना कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ में किस किस में बेनिफिट्स दिए हैं। So if a person is not aware of that, they will have to pay more tax. And finally, invest in the tax saving instruments. There are a wide range of deductions available to the taxpayer in section 80C through 80U of the इनकम टैक्स एक्ट। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स डिडक्शंस हैं 80C से लेके 80U तक इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग डिडक्शंस मिलती हैं। और ऑप्शंस इंक्लूड पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इन म्यूचुअल फंड ईएलएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, और 5-year बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड होम लोन पेमेंट्स कैन लेट यू अवेल द टैक्स सेविंग। गवर्नमेंट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस देगी। अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे हम आपसे उतना कम टैक्स लेंगे। 5,000 ये, और इसमें 1,50,000 तक की लिमिट होती है।
80C में अप टू 1,50,000, यानी कि 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट कर दोगे अगर, तो 1,50,000 का आपका माफ हो जाएगा टैक्स। वो अपर लिमिट गवर्नमेंट ने लगाई हुई है इनकम टैक्स में। डिडक्शन ओनली अंडर सेक्शन 80C। उसके अलावा भी हेल्थ इंश्योरेंस अलग हो सकता है, एजुकेशन लोन, होम लोन पेमेंट्स, सबके अलग अलग सेक्शंस हैं। जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ दैट इज फ्रॉम फॉर एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 80C, PPF, ELSS। देयर आर 10-20 इंस्ट्रूमेंट्स। हम उनके बारे में डिटेल में कल बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। दिस इज वन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ एन इंडिविजुअल्स इनकम इज 6.5 lakhs per annum and they invest 1.5 lakh in the notified scheme, they can bring down their taxable income to the 5 lakhs। मैंने आपको बताया ना कि 1,50,000 की सेक्शन 80C में मैक्सिमम लिमिट है रिडक्शन करने की। तो मान लो उन्होंने 1,50,000 में PPF में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ELSS में कर दिया, बैंक में 5 साल की FD कर दी, तो टोटल 1,50,000 का जितना इन्वेस्टमेंट, मान लो 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 1,50,000 उनकी टैक्सेबल इनकम में से कम हो गए, बचे 5 lakhs। They can bring down their taxable income to 5 lakh, consequently reducing tax liability to nil, as a person having taxable income up to rupees 5 lakh is available for rebate of rupees 12,500 under section 87A। ये नंबर 1 रूल है इनकम टैक्स का कि जिन पर्सन्स की इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है उनके उनको रिबेट मिलता है टैक्स में, टैक्स रिबेट मिल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट उनसे टैक्स कम चार्ज कर रही है। तो जिस पर्सन की 5 लाख इनकम है ना, उनका सिर्फ 12,500 टैक्स बनेगा। द सेविंग्स कैन देन बी पुट टू प्रोडक्टिव यूज। प्रोडक्ट टैक्स बच गया जो आपको नहीं देना पड़ रहा, तो एक तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो आपका प्रोडक्टिव यूज ऑफ योर फंड्स हो गया। उसके अलावा जितना टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ा वो भी आपका पैसा बच गया। यू कैन यूज दैट मनी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। With a simple assessment of your income and some basic tax rules, planning your taxes can ensure your overall financial security. In totality, आपकी financial planning इतनी, आपकी tax planning इतनी जितनी अच्छी होगी, जितना आप अच्छे से अपनी income और tax rules को समझ के plan कर पाओगे, you will be more financially secure, is what the tax planning process says. Let's take your doubts. What is meant by litigation? Litigation का मतलब है कोई disputes आती हैं जो कोर्ट में, वो गवर्नमेंट के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में हो सकती है, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में हो सकती है। जिस हम लिटिगेशन की बात कर रहे थे, टू लिटिगेट इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद द लोकल, फेडरल, स्टेट और फॉरेन टैक्स अथॉरिटी। एज सिंपल एज दैट। मिनिमाइज करना लिटिगेट का मतलब है कोई अगर टैक्स कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके पीपीटी क्लियर शो नहीं हो रही थी कोई पूरा लाइक नन ऑफ द स्लाइड्स ममता टैक्स रेट वाला मैं शो करने की कोशिश करती हूँ। टेल मी इफ इट इज स्टिल नॉट विजिबल टू यू। आई थिंक लास्ट लाइन नहीं आ रही है इसकी, जो सुपर सीनियर सिटीजन का अबव 10 लाख है, तो अबव 10 लाख वो 30% ही है। मैं ट्राई कर लेती हूँ अगर should I try to zoom in for you? Is it visible now ममता? I hope it is visible for you now. मैं आपको zoom कर दिया है मैंने। तो देखो इंडिविजुअल्स केस में, इंडिविजुअल्स अदर दैन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन मतलब कि लेस दैन 60 years of age, टैक्स स्लैब टैक्स रेट्स हैं up to 2,50,000 there is no tax applicable, above 250 to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh 20%, and above 10 lakh 30%. Senior citizen यानी कि 60 years age and less than, above 60 and less than 80, above 60 हैं तो 250, यहाँ पे 250 का एग्जाम्प्ट इनकम, यहाँ है 3 लाख, बाकी तीनों रेट सेम है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि अब पर्सन हु इज अबव 80 years, तो अब उनके केस में जो टोटल एग्जाम्प्ट इनकम है वो और बढ़ा दी, 3 लाख थी सीनियर सिटीजन के केस में, यानी कि 60 years उनकी एज है। और पर्सन जिनकी एज 80 से ऊपर हो जाएगी, गवर्नमेंट उनसे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं मांगेगी, 5 लाख की इनकम तक। उसके बाद स्लैब सेम है, 5 to 10 पे ऊपर भी 20% है, 10 पे 30% है। सिमिलरली तो जो स्लैब बेसिक एग्जेम्प्ट इनकम है वो तीनों के केसेस में डिफरेंट है। जो बाकी रेट्स हैं आपकी अप टू 5 लाख 5% है, 5 to 10 लाख 20% है, अबव 10 लाख 30% है, वो सेम रहेगा।
उसके अलावा मैंने आपको जो एग्जाम्पल में बताया दैट दिस पार्ट दैट अ पर्सन हुज इनकम इज अप टू ₹5 लाख, उनको ना एक होता है इनकम टैक्स में सेक्शन 87A, उसके अंडर टैक्स रिबेट मिलती है। कितनी की रिबेट मिलती है? 12,500 की। तो इससे फर्दर अप टू 5 लाख जिनकी इनकम है, फर्दर इनकम टैक्स की डिडक्शन हो जाती है उनकी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, आर देयर एनी मोर डाउट्स? So we've completed our second unit today and टैक्स प्लानिंग का हम ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आज हमने सिर्फ मीनिंग क्या होता है टैक्स प्लानिंग का, व्हाट आर द स्टेप्स इन टैक्स प्लानिंग, व्हाट इज द बेसिक टैक्सेशन स्ट्रक्चर, ये हमने सिर्फ पर्सनल टैक्सेस का किया है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी होता है जो, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। हमने आज सिर्फ इनकम टैक्स देखा है, हमने इंडिविजुअल पे जो टैक्स लगता है हमने आज वो देखा है। ओके, आर देयर एनी मोर डाउट्स? आई होप बाकी स्लाइड्स आपको ममता क्लियर थे, और शुड आई रन द पीपीटी फॉर यू वंस अगेन, सो इफ देयर आर एनी मोर डाउट्स आपको क्लियर हो जाए। पर्सनल टैक्सेस की मैं टैक्स प्लानिंग की मैं कर देती हूँ आपके लिए। सिंस वी हैव 2-3 minutes, सो इन केस आपका कुछ मिस हुआ था यू कैन सी इट। ओके, सी पहले हमने सिर्फ मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग किया है। बेसिकली यू हैव टू एनालाइज योर फाइनेंशियल सिचुएशन, देन मैनेज योर earnings accordingly to reduce your tax liability in a legal way. Basically, in short, that is tax planning. फिर advantages क्या हैं? You want to minimize your litigation process, you want to minimize your tax liability, you want to use your funds in a productive manner, you are also ensuring economic stability for the economy as well as for yourself. टैक्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है, परमिसिव हो सकती है एज पर गवर्नमेंट डिडक्शंस, पर्पसिव हो सकती है कि आप खुद भी इस तरह से प्लान करो। स्टेप्स क्या है? बेसिकली पर्सन शुड अंडरस्टैंड देयर ओन इनकम, दे शुड नो कि उसमें से टैक्सेबल इनकम कौन सी है, दे शुड नो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं कि टैक्स कम देना पड़े। यू टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, keep all your formal papers with you and then before the deadline फाइल कर दो। ये स्लैब हमने पढ़ लिया। टैक्स प्लानिंग का जो मेथड है अब डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। हम ये सारी जो एक्चुअली जो डिडक्शंस हैं, जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, we'll look at them in the next class one by one. So okay, now so we can wind up the class for today. We'll meet in the next class. Thank you.